Good morning, children. Today we are going to start question number 11 of exercise 16D. Two concentric circles have radii of 14 centimeter and 7 centimeter respectively. Find the area of space between them. देखिए, concentric circle means its center is same. First circle is this. Its radius is 7 centimeter. And second is this. सेम सेंटर, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर. आपको ये एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम यानी कि इसका आपका जो ये स्पेस है, बीच में गैप है, इसका एरिया बताना है. तो फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, देन वी फाइंड एरिया ऑफ ग्रेटर सर्कल, देन वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ग्रेटर सर्कल फ्रॉम द ग्रेटर सर्कल. Then we find the area of space between them. तो एरिया या रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल या स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. मीन्स area of smaller circle pi r square means 22 upon 7 into 7 into 7. 7 cut by 7, 154 centimeter square area of the smaller circle. Now we write radius of greater circle is equal to 14 centimeter. Area of greater circle is equal to pi r square means 22 upon 7 into 14 into 14. 7 2s are 14. 22 multiply by 14 we get 308. 14 2s are 28. 14 2s are 28 or 1 230. Multiply by 2 616. 2 8s are 16. 2 3s are 6 centimeter square is area of greater circle. Now area of space between them is equal to area of greater circle minus area of smaller circle. Greater circle 616 minus 154. 6 minus 4 2. 11 minus 5 6. 5 minus 1 4. 462 centimeter square. So we write here 462 centimeter square is area of space between two circles. Clear? Now question number 12. A horse is tied to a pole with 21 centimeter long string. Find the area where the horse can graze. Suppose it is a pole और यहाँ से एक हॉर्स बंधा हुआ है जिसका स्ट्रिंग कितना है 21 सेंटीमीटर. अब आप ये देखें, अगर यहाँ पर वो है पोल और वो हॉर्स यहाँ 21 सेंटीमीटर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो वो इसके चारों साइड ही यानी कि इसके अंदर ही ग्रेज कर सकता है, यानी कि वो इसके अंदर ही क्या कर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है. तो इट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. देन वी फाइंड एरिया ऑफ दिस पार्ट. ओके, तो रेडियस is equal to 21 radius is equal to length of string. Length of string is equal to 21 centimeter.
area of where the horse can graze इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी के चारों ओर यानी कि वो घूमता रहेगा और इसी के अंदर का पार्ट वो ग्रेज कर सकता है, इसकी आउटर साइड पर वो नहीं जा सकता। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, सॉल्व दिस। 7 3s are 21, 22 3s are 66, 66 multiplied by 21, we get 21 multiplied by 6 is equal to 1386 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। वी राइट हेयर मीटर। तो हाउ मैनी मीटर स्क्वायर एरिया? 1386 मीटर स्क्वायर। तो एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस, तो आप लिखेंगे हॉर्स कैन ग्रेज इन 1386 मीटर स्क्वायर एरिया, इतना एरिया में वो ग्रेज कर सकता है। क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 14। A circular flower is surrounded by a path 2 meter wide. The diameter of the flower bed is 32 meter. What is the area of the path? Similar है बच्चों, देखो, it is a flower bed. Its diameter is 32 meter and its radius is 16 meter. Half of the diameter is its radius. Then a circular flower bed is surrounded by a path, यानी कि इसके यहाँ से ये कितना मीटर वाइड है? 2 मीटर। द डायमीटर, देखिए, इट इज़ अ फ्लावर बेड एंड 2 मीटर वाइड पाथ सराउंडेड बाय द फ्लावर बेड। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ। आप पहले फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे, उसके बाद आप फ्लावर बेड विद पाथ निकालेंगे, फिर आप विद पाथ वाले में से फ्लावर बेड के एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। तो फर्स्ट वी राइट हियर डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड is equal to 32 meter. Radius is equal to diameter upon 2. It means 32 upon 2 is equal to 16 meter. Now, area of flower bed is equal to pi r square. In this question, we take value of pi is equal to 3.14. Because its radius is 16 and 16 is not divisible by 7, so we take 3.14. R is equal to 16 into 16. If we multiply 3.14 into 16 into 16, we get 803.84 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। ये तो आपका आ गया एरिया इसका, ये जो फ्लावर बेड है, इट इज फ्लावर बेड। नाउ रेडियस ऑफ फ्लावर बेड विद पाथ इज इक्वल टू 16 प्लस 2। देखिए इधर से यहाँ से ये 16 है, 2 मीटर वाइड इसका पाथ है, तो कितना हो गया? 18 मीटर। नाउ एरिया of flower bed with
path इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अगेन 22 नहीं लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 सो वी टेक 3.14 इंटू 18 इंटू 18 इफ वी मल्टीप्लाई दिस वी गेट 1017.36 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1017.36 मीटर स्क्वायर। नाउ area of path is equal to area of flower bed with path minus area of flower bed, यानी कि इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को क्या कर देंगे माइनस 1017.36 minus 803.84. Subtract them. 6 minus 4 2, 13 minus 8 5, 6 minus 3 3, 1 minus 0 1, 10 minus 8 2. तो कितना आ गया 213.52 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ इज 213.52 मीटर स्क्वायर। क्लियर?